A very warm morning to one and all present here. This is Abhilasha Nahata from Layal Public School. And students, I am your social science teacher. So kids, today we all are going to continue our chapter number 9 from your history textbook. The name of the chapter is The Making of Regional Cultures. In our last class, we discussed about the Rajputana and the heroism of Rajputana, the tradition of heroism, how they influenced ordinary people with their strong emotions, like strong emotions of loyalty, friendship, love, valor, anger, etc. We get to know so many things about that, common people influenced by those people. After that, we talked about Kathak. We talk about dance, the evolution of dance with the example of Kathak, right? So we talked about Kathak, and Kathak is one of the six classical dance of India. After independence, Kathak is classified as one of the classical dance form of India. There are six classical dance forms in India, and उसमें से एक जो है आपका कथक है. सो आज हम कंटिन्यू करते हैं, आपका क्लासिकल डांसेस के बारे में कुछ पढ़ते हैं, एंड आफ्टर दैट वी विल कंटिन्यू विद आवर नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज पेंटिंग फॉर पैट्रन्स. वी विल टॉक अबाउट पेंटिंग्स एंड वी विल take the example of miniature. With the example of miniature, we will learn about paintings and how paintings evolve during the evolve over the time. Okay, so now already have gone through these Kathak. So dance class Lakshmana Temple खजुराहो के जो ये कुछ poses हैं ये dance classes के dance के, right? So now just look at this pink box. Classical dances. The question of defining any art form as classical is often quite complicated. Do we define something as classical if it deals with a religious theme, or do we consider it classical because it appears to require a grade of skill acquired through long years of training? Or is it classical because it is performed according to rules that are laid down and variations are not encouraged? These are the questions we need to think about. It is worth remembering that many dance forms that are classified as folk also share several of the characteristics considered type of classical forms. So while the use of the term classical may suggest that these forms are superior, this need not always be literally true. Okay, so now what is classical? What do we mean by the term classical first of all? So classical, there are so many questions. There are so many questions which we have seen. What is the meaning of classical? Or classical is something which always deals with religious theme, or it requires a great skill, or it is classical because it is performed according to rules and regulation. So what is basically classical? So classical means something which is representing an exemplary standard within a traditional and long established form of style. एक ऐसा traditional in simple term, it is known as ट्रेडिशनल. अगर सिंपली आपको बताऊं तो इसका मतलब होता है ट्रेडिशनल, जो क्या रिप्रेजेंट करता है, विच रिप्रेजेंट्स एन exemplary standard within a traditional and long established form or style. जो बहुत लंबे समय से एक स्टाइल जो है established किया हुआ है traditionally, उसको हम क्या करते हैं, उसको बहुत ज्यादा superior मानते हैं, उसको हम classical बोलते हैं. ऐसा नहीं है कि classical है तो वो बिल्कुल परम सत्य होगा या बिल्कुल literally true होगा.
नहीं, कोई जरूरी नहीं है, बट इट मीन्स लाइक ये बहुत सालों से, बहुत लंबे टाइम से एस्टैब्लिश्ड है, और हम उसको क्या बोलते हैं, हम उसको बहुत ज्यादा सुपीरियर मानते हैं, दैट इज क्लासिकल. ओके, सो अदर डांस फॉर्म्स दैट आर रिकॉग्नाइज्ड एज क्लासिकल एट प्रेजेंट आर भरतनाट्यम फ्रॉम तमिलनाडु, कथकली केरला, उड़ीसी उड़ीसा, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश, मणिपुरी मणिपुर. Okay, so we have dealt with we have talked about we already talked about Kathak. कथक के अलावा भरतनाट्यम, कथकली, उड़ीसी, कुचिपुड़ी, मणिपुरी जो है वो क्या है, अदर क्लासिकल डांस फॉर्म्स है जिसको हम रिकॉग्नाइज करते हैं एज अ क्लासिकल डांस फॉर्म्स ऑफ इंडिया. ठीक है, नाउ फाइंड आउट मोर अबाउट एनी वन ऑफ दीज डांस फॉर्म्स. ठीक है, अब हमने क्लास कथक के बारे में तो बहुत कुछ पढ़ लिया. सो नाउ योर होमवर्क इज, जिसके भी बारे में आपको जिस भी डांस फॉर्म में आपको इंटरेस्ट है, यू ऑल आर सपोज टू फाइंड आउट इट्स हिस्ट्री, उसकी जो इम्पोर्टेंस है उसके बारे में आपको पता करना है, एंड वी विल डिस्कस अबाउट इट लेटर ऑन. ओके, सो नाउ जस्ट लुक एट दिस फिगर 6. कथक डांसर्स अ कोट पेंटिंग. एक कोट में, जैसे पहले राजा महाराजा के जो कोट लगती थी, सभा लगती थी, तो उस टाइम पे वहां का, आज प्रेजेंट डे अगर हम कोर्ट देखते हैं, ठीक है, जो आर्किटेक्चर है पुराना, अगर वहां देखते हैं तो वहां पे हमें ऐसी पेंटिंग्स वगैरह देखने को मिलती है. Okay, now our next topic is paintings for patrons, the tradition of miniatures. Patrons are the सपोर्टर्स ऑफ आर्ट एंड कल्चर. जो आर्ट एंड कल्चर को सपोर्ट करते हैं उसको हम पेट्रॉन्स बोलते हैं. सो मिनिएचर इज समथिंग विच इज वेरी स्मॉल. जब हम किसी भी बड़े चीज को, बड़ी कोई सीनरी है या कोई भी बड़ी चीज है, उसको जब हम छोटे रूप में दिखाते हैं तो उसको हम बोलते हैं मिनिएचर फॉर्म्स. जैसे आपकी कार्स हैं, ठीक है, अब कार्स होती है ना, तो अब बच्चों के लिए जो कार आती है वो बहुत छोटी छोटी होती है, तो दैट इज मिनिएचर ऑफ कार. कार का एक छोटा रूप है, ठीक है, उसको हमने क्या बता रखा है, एक छोटे से रूप में बता रखा है कि अच्छा ये कार है. तो जब मिनिएचर समझ में आया क्या होता है मिनिएचर मतलब जब हम कोई भी बड़ी चीज को जब छोटे रूप में प्रेजेंट करते हैं तो दैट इज नोन एज मिनिएचर. Okay, so just look at this picture. This picture is representing Akbar resting during a hunt. मुगल मिनिएचर, एक ये मिनिएचर है जिसमें अकबर जो थे, मुगल एम्परर अकबर जो थे, वो हंट के टाइम पे रेस्ट कर रहे थे, उस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है. आफ्टर दैट वी सी कि विद द डिक्लाइन ऑफ द मुगल एम्पायर मेनी पेंटर्स मूव्ड आउट टू द कोर्ट्स ऑफ द इमर्जिंग रीजनल स्टेट्स. अब बहुत सारे जो पेंटर्स हैं वो अब जैसे जैसे मुगल एम्पायर क्या होने लग गया था, डिक्लाइन होने लग गया था, तो वैसे वैसे जो बहुत सारे जो पेंटर्स थे दूसरे रीजन में जाने लग गए थे, जैसे कि डेक्कन हो गया, ठीक है, डेक्कन के कुछ पार्ट्स में जाने लग गए, राजस्थान के राजपूत कोर्ट्स में जाने लग गए थे, एंड एट द सेम टाइम दे रिटेन्ड एंड डेवलप्ड देयर डिस्टिंक्टिव कैरेक्टरिस्टिक्स. और धीरे धीरे और भी ज्यादा उनके जो फीचर्स थे, जो पेंटिंग्स के फीचर्स थे, वो काफी डेवलप होने लग गए थे. अब जो रूलर्स हैं उनके पोर्ट्रेट्स, जो पोर्ट्रेट्स होते हैं ना, जैसे जस्ट लुक एट दिस पिक्चर, जस्ट गिव मी अ सेकंड. Just look at this picture, Prince Raj Singh of Bikaner. This is portrait. ये इस टाइप की जो पिक्चर्स होती हैं, इस टाइप की जो पेंटिंग्स होती हैं ना, उसको हम पोर्ट्रेट बोलते हैं. ठीक है, तो अब पोर्ट्रेट्स भी जो थे वो काफी जो एम्पायर स्पोर्ट के सीन्स हो गए, रूलर्स के पोर्ट्रेट्स बनने लग गए थे, कोर्ट के सीन्स को जो है वो पेंट करना स्टार्ट कर चुके थे, पोइट्री को डिपिक्ट करते थे. ठीक है, जो भी मेवाड़, जोधपुर, बूंदी, कोटा और किशनगढ़, वहां की पोइट्री के थ्रू जो भी लिखा हुआ होता था उस चीज को रिप्रेजेंट करते थे पेंटिंग्स के थ्रू. Another region that attracted miniature paintings was the Himalayan foothills around the modern day state of Himachal Pradesh. By the late 17th century, this region had developed a bold and intense style of miniature painting
called बाशोली। अब जो मिनिएचर पेंटिंग है अब कहाँ पे, हिमाचल, प्रेजेंट डे हिमाचल प्रदेश में भी बहुत ज्यादा फेमस होने लग गई थी और 17th सेंचुरी में काफी बोल्ड और इंटेंस स्टाइल का, मतलब बोल्ड कलर्स का यूज करना स्टार्ट कर दिया था। इफ यू लुक एट दिस पिक्चर, कितना बोल्ड कलर्स यूज किया हुआ है ना, तो बोल्ड स्टाइल को, इंटेंस स्टाइल को जो है उन्होंने यूज करना स्टार्ट कर दिया था और ऐसे जो पेंटिंग्स थी उसको बाशोली कहा जाता था। द मोस्ट पॉपुलर टेक्स्ट टू बी पेंटेड हेयर वाज बहुनदत्ता रसमंजारी, बहुनदत्ता रसमंजारी। Nadir Shah's invasion and the conquest of Delhi in 1739 resulted in the migration of Mughal artists to the hills to escape the uncertainties of the plain। नादिर शाह ने जब दिल्ली को इन्वेड किया था, मतलब दिल्ली को जब कैप्चर किया था, तो उस टाइम पे मुगल आर्टिस्ट ने जो है किसके साथ माइग्रेट कर लिया था, वो जो प्लेन्स में अनसर्टेनिटीज चल रही थी, तो वो हिमालयाज में क्या है वहां पे भी वो जाने लग गए थे। Here they found ready patrons which led to the founding of the Kangra School of Painting। अब यहाँ पे कांगड़ा स्कूल ऑफ पेंटिंग्स बहुत फेमस है, कांगड़ा स्कूल ऑफ पेंटिंग उसको फाउंड किया। By the mid 18th century, the Kangra artists developed a style which breathed a new spirit into miniature painting। The source of inspiration was the Vaishnavita traditions। Soft colors including cool blues and greens and a lyrical treatment of themes distinguished कांगड़ा पेंटिंग्स। अब कांगड़ा पेंटिंग्स में क्या स्टार्ट होने लगे, अब एक मिनिएचर पेंटिंग में जो है अब अलग सा जो एक फॉर्म उन्होंने डाला, एक अलग सी जो है जान डाली थी और उसका जो इंस्पिरेशन का था वो क्या था, वैष्णवता ट्रेडिशन था। इसमें सॉफ्ट कलर्स यूज करने लग गए थे, बहुत सारे ब्लू और ग्रीन कलर का बहुत ज्यादा यूज होने लग गया था और जो कांगड़ा पेंटिंग थी काफी डिस्टिंग्विश्ड थी, काफी कुछ डिटेल्ड जो है इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती थी। रिमेंबर दैट ऑर्डिनरी वुमेन एंड मेन पेंटेड एज वेल on pots, walls, floors, cloth, work of art that have occasionally survived, unlike the miniatures that were carefully preserved in palaces for centuries। अब ordinary women और men भी है ना पेंट करते थे वो पॉट्स में, अपने घरों के वॉल्स को, फ्लोर्स को, क्लोथ को, इन सारी चीजों को भी वो पेंट करते थे। वो इतना प्रिजर्व होके नहीं रह पाया जो मिनिएचर्स राजा महाराजा के पोर्ट्रेट्स वगैरह जो प्रिजर्व होके रह सकी थी, वो ये सारी चीजें इतनी प्रिजर्व होके नहीं रह पाई जो ये कॉमन ऑर्डिनरी वुमेन और मेन पेंट करते थे। ओके, नाउ जस्ट लुक एट दिस पिक्चर। दिस इज कृष्णा राधा एंड हर कंपेनियन पहाड़ी मिनिएचर कांगड़ा। देखो कृष्णा राधा को जो है इसमें रिप्रेजेंट किया गया है, कृष्णा राधा और उनके जो फ्रेंड थे उनको यहाँ पे रिप्रेजेंट किया गया है एंड इस मिनिएचर को पहाड़ी मिनिएचर का नाम दिया गया है। ये कांगड़ा पेंटिंग का एक एग्जाम्पल है। देखो ब्लू और ग्रीन कलर का बहुत ज्यादा इसमें यूज किया गया है। ओके, and this painting Maharana Ram Singh II playing होली राजपूत मिनिएचर कोटा। महाराणा राम सिंह जो है वो होली खेल रहे हैं और उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं इस पेंटिंग में, और ये कोटा की राजपूत मिनिएचर की एक पेंटिंग है।